خداوند یسوع مسیح کی حضوری میں سبوں کو ویلکم اور خوش آمدید. جی آیاں نو ویلکم، خوش آمدید. میں کہنا ہاں جی آیاں نو ویلکم. خداوند تہانوں سارے بڑی برکت بخشے اور خداوند دا پاک روح تہاڈی سارے دی مدد اور سہایتا کردا رہے. ہاللویا اور ہیپی ریزریکشن ڈے. عید قیامت المسیح تہانوں سارے بڑی بڑی مبارک ہوے. جنہیں لائیو نے تہانوں سارے بھی ہیپی قیامت المسیح، ہیپی ریزریکشن ڈے. سو خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ اس نے آج ہمیں پھر سے وقت دیا کہ اس کی حضوری میں ہم ایک بار پھر سے جمع ہیں. ہاللویا ہاللویا ہاللویا. کلام خدا میں سے ہم نے تلاوت کو سنا ہے. خدا کا بندہ یوحنا تیری تعریف ہو خداوند. ایک بڑی خاص بات آج کے سرمن میں بیان کی گئی. یوحنا عرف جو بات کر رہا ہے یہ بات عام بات نہیں ہے. تمہار اور برا. تمہار کیا ہے؟ تمہار اور برا. جتنے لوگ ہسٹری سے واقف ہیں، بائبل کے بارے میں جانتے ہیں، پہلے ایک رکا ایسے کر کے لکھا جاتا تھا الگ الگ پیجز پہ، مانو کہ پیج، اور جانوروں کی کھالوں پر بھی کلام لکھا گیا، پھر پتوں پر کلام لکھا گیا، اور بہت سی چیزوں پر خدا کے کلام کو لکھ کر اسے سیو کیا گیا ہوا تھا، رکھا ہوا تھا. تمہار اور برا. تمہار ایک پیج تھا، ایک رکا تھا، ایک پیپر تھا، یا ایک کہہ لو ایک صحیفہ کہہ لو، یا ایک پیج کہہ لو جو تھا. اور وہ کس کے ہاتھ میں تھا؟ تخت پر بیٹھے ہوئے کے ہاتھ میں. گواہی دے رہا ہے یوحنا عرف یہاں پر، کہتا ہے کہ میں نے اس تخت اور چاروں جانداروں اور ان بزرگوں کے بیچ میں گویا ذبح کیا ہوا ایک برا کھڑا دیکھا. یہاں پر ایک برا کی بات ہو رہی ہے، اور یہ ذبح بھی ہے اور کھڑا بھی ہوا ہے. یہ برا، اس کی قلم، اس کی گردن جو وہ قلم ہے، یہ ذبح کیا ہوا ہے، لیکن یہ کھڑا ہوا ہے اپنے قدموں پر. آپ نے کبھی ایسا نہیں سنا ہوگا، کبھی ایسا نہیں دیکھا ہوگا کہ ایک برے کو ذبح کیا جائے اور وہ اپنے قدموں پر کھڑا رہے. ایسا ممکن ہی نہیں تھا. بائبل مقدس میں خدا نے جب اپنے لوگوں کو سوختنی قربانیاں دینے کے لیے کہا، خطا کی قربانیوں کا حکم دیا گیا، تو سردار کاہن اپنے ہاتھ میں پیالہ لیے ہوئے ہیکل کے پاک ترین مکان میں داخل ہوتے تھے، اور مذبح کے چوگرد اس لہو کو پھینکا جاتا تھا، چھڑکاؤ کیا جاتا تھا، اور اس برے کی قربانی کے وسیلے کیا ہوتا تھا؟ لوگ رہائی پاتے تھے، لوگ شفا پاتے تھے، لوگ نجات پاتے تھے، لوگ بحالی کو دیکھتے تھے، اور لوگ پاک کیے جاتے تھے. لیکن اب کیا ہونے لگا؟ لوگ جیسے گناہ زیادہ کر رہے تھے، ایسے قربانی بھی زیادہ دی جا رہی تھی. خداوند کو ان لوگوں کی قربانیوں سے گھن آنے لگی. خداوند کو ان کی قربانیاں پسند نہیں آ رہی تھی. وہ برے کا لہو، وہ بھیل بچڑوں کا لہو اب رنگ نہیں لے کے آ رہا تھا. سردار کاہن وہ لہو کا چھڑکاؤ تو کر رہے تھے، وہ قربانیاں تو گزران رہے تھے، لیکن گناہوں کی معافی نہیں ہو رہی تھی. چھٹکارا کہیں سے نہیں آ رہا تھا، اور کہیں سے کوئی جان کو خلاصی نہ تھی. بائبل بتاتی ہے کہ جب بھیل بچڑوں کا خون رنگ نہ لایا تو خداوند نے اپنے بیٹے کو بھیجا تاکہ وہ میرے لیے اور آپ کے لیے قربان ہو، اور اس کے پاک لہو کے وسیلہ سے میں اور آپ نجات پائیں.
اب قربانی ایسی چاہیے تھی جو بے عیب برہ ہو. ایک ایسی قربانی چاہیے تھی جس قربانی میں کوئی عیب نہ ہو. اور لوگ بے عیب بروں کو ذبح کرنے کی کوشش کر رہے تھے یا ذبح کر رہے تھے, لیکن کوئی معافی, کوئی یعنی کہ بلڈ رنگ نہیں لے کے آ رہا تھا. میرا اور آپ کا سردار کاہن, میرا اور آپ کا خداوند یسوع آیا اور وہ اپنا ہی لہو لے کر کوہ کلوری پر چلا گیا. جو ہی خداوند یسوع کوہ کلوری پر گئے, بائبل بتاتی ہے, ثابت کیا گیا, کلام خدا میں ثابت قدم ہے یہ باتیں, کہ جو ہی خداوند یسوع کوہ کلوری پر گئے, ہیکل کا پردہ پھٹ کے 2 حصے ہو گیا. یہ کلام آپ نے بار بار سنا, لیکن غور سے سننا, آج آپ کو ایک نئی بات اس میں سیکھنے کو ملے گی. ہیکل کا پردہ جب پھٹ کے 2 حصے ہوا تو خداوند نے راہ تیار کر دی. اب جو جدائیاں تھیں, اب جو علیحدگی تھی, وہ ختم ہو گئی تھی. خداوند یسوع کے لہو کے وسیلہ سے آدم نے جو گناہ باغ عدن میں کیا تھا, اس گناہ کی وجہ سے خدا آدم سے دور تھا. بنی نوع انسان جتنے آدم زمین پر تھے, جتنے انسان زمین پر تھے, خدا ان میں سے چند لوگوں کے ساتھ تھا اور خدا ان کے ساتھ ڈائریکٹ بات نہیں کرتا تھا. لیکن خدا نے پھر سے اپنے لوگوں کو یاد کیا. وہی کلام ایک بار پھر سے دہراتا ہوں, وہ کہتا ہے, میں نے تیری صورت کو اپنے ہاتھ کی ہتھیلی پر کھود رکھا ہے. اور کھجور کی ڈالیاں جو لہرا رہے تھے اسرائیلی, اس بات کی پروفیسی کر رہے تھے, اس بات کی پریڈکشن کر رہے تھے کہ خداوند تو نے ہمیں یاد کیا ہے اور تو نے اپنے بیٹے کو بھیج دیا, مسیح آ چکا, اب ہمارے گناہوں سے ہمیں رہائی ملے گی, اب ہمارے دکھ ہم میں سے اٹھا لیے جائیں گے. اور وہ خوشی سے شادمان ہو کر کیا کرنے لگے, خداوند یسوع کو ویلکم کرنے لگے. وہ جانتے تھے کہ یہ ہمارے گناہوں کی قربانی دیں گے اور ہم نجات پائیں گے. ایک ٹویسٹ کی بات ہو رہی ہے یہاں پر. جب یسوع یروشلم میں داخل ہوئے, ایک بہت بڑی بھیڑ نے یسوع کا استقبال کیا تھا, بہت بڑی بھیڑ نے. اور یسوع جب دعا کے لیے اندر چلے گئے, ہیکل میں چلے گئے, اور یسوع نے باہر آنے میں دیری کی. وہ سمجھتے تھے کہ یسوع زمین پر آیا ہے اور یسوع اب ہمارا بادشاہ ہوگا زمینی, لیکن وہ نظام الہامی تھا, وہ نظام روحانی تھا, اور خداوند یسوع نے ہمارے گناہوں کا کفارہ دینا تھا اور حقیقت میں ہمارا بادشاہ بننا تھا. وہ انتظار کرتے رہے اور چلے گئے. اور یسوع نے یوں ہی ہیکل کے اندر ان جانوروں کو, ان چیزوں کو دیکھا جو وہاں پر لوگوں نے ہیکل کے اندر لگائی تھی. خداوند یسوع نے ان کے تختے پلٹ دیے اور ان سے کہا, تم نے میرے باپ کے گھر کو ڈاکوؤں کی کھو بنایا ہے. اور وہی لوگ جو خداوند یسوع کو ویلکم کر رہے تھے, خداوند یسوع کے حق میں نعرے لگانے لگے, اس کو صلیب دو, اس کو صلیب دو, اس کو صلیب دو, اور ہم نہیں چاہتے کہ یہ بچے. جب کاہنوں کے ہاتھ میں یہ بات گئی, کاہنوں نے دیکھا, وہ تو پہلے سے ہی چاہتے تھے کہ یسوع اب نہ رہیں, اور وہ بھی کیا کرنے لگے, مخالفت کر رہے تھے, اور وہ بھی نعرے بلند کرنے لگے. خداوند یسوع نے کلام خدا میں بڑی دکھ اور درد سے کہا, میں اپنوں میں اور میرے اپنوں نے مجھے قبول نہ کیا. یہ وہی برا ہے جسے لوگوں نے کہہ کر صلیب پر لگوا دیا. اب یسوع کو کوڑے مارے گئے, یسوع کے منہ پر تھوکا گیا, یسوع کو ذلیل و رسوا کیا گیا, یسوع کے کندھے پر صلیب رکھ دی گئی, اور یسوع کو کوہ کلوری کی طرف لے کے جایا گیا. اس پہاڑ پر جو کھوپڑی کی پہاڑی کہلاتی, وہاں پر یسوع کو لے جایا گیا, اور لوگ, چند لوگ, کچھ لوگ جو خداوند یسوع سے پیار کرتے تھے, وہ رو رہے تھے, عورتیں رو رہی تھیں, یسوع کے ساتھ ساتھ چل رہی تھیں اور رو رہی تھیں. خداوند یسوع نے کہا, میرے لیے ماتم نہ کرو, تمہیں میرے لیے رونے کی ضرورت نہیں ہے.
तुम अपने बच्चों के लिए रो, अपने बच्चों के लिए गम करो, मेरे लिए नहीं। क्योंकि बाइबल में खुदावंद यीशु ने पहले से बताया है कि मैं मारा जाऊंगा, मैं सताया जाऊंगा। खुदावंद यीशु ने शागिर्दों से पहले कह दिया था, मैं सताया जाऊंगा, मारा जाऊंगा, गुनहगारों के हाथों में दिया जाऊंगा, और वो मुझे सलीब देंगे और मैं मर जाऊंगा और तीसरे रोज मुर्दों में से जी उठूंगा। ये वही बर्रा है जिसे सलीब पर दिया गया, जिसको ज़िबा किया गया, जिसके सर पे कांटों का ताज रखा गया, जिसे मारा गया। ये वही बर्रा है जिसे आसमान पर ज़िबा हुआ देखता है यूहन्ना अरफ। और उसके बारे में क्या कहता है? और मैंने उस तख्त और चारों जानदारों और उन बुजुर्गों के बीच में गोया ज़िबा किया हुआ एक बर्रा खड़ा देखा, उसके 7 सींग और 7 आंखें थी। ये खुदा के 7 रूहें हैं जो तमाम रोया ज़मीन पर भेजी गईं। ये वही बर्रा है जो मेरे और आपके गुनाहों की खातर सलीब पर गया। और अब वहां पर क्या देख रहा है यूहन्ना अरफ? उसके 7 सींग हैं और 7 आंखें थी, और ये 7 खुदावंद की रूहें हैं। खुदावंद यीशु वो खुदा है जिसके ऊपर खुदावंद की 7 रूहें हैं। समझ आई? हम खुदावंद यीशु को ऐसे नहीं खुदावंद कहते, वो खुदावंद थे। यीशु जब पानी से बाहर गए, रूहुल कुदस कबूतर की मानद खुदावंद यीशु पर आकर ठहर गया, और आसमान से यह आवाज आई कि ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूं। अब यहां पर लोग कहते हैं कि मसीहत में ट्रिनिटी का तस्वुर क्या है, हमें समझ नहीं आती। एक बात को आसान कर देता हूं यहां पर। कभी आदमी खुद से भी बात कर लेता है, कभी आदमी खुद से भी बात करता है, जब मौज में हो या दुख में हो। खुशी में हो, 2 ही तरह से अपने आप से बात होती है, या तो दुख के आलम में, या नहायत जब आप खुश होते हैं। और यहां पर खुदावंद यीशु तीनों सूरतों में खुद से ही बात कर रहे थे, खुद से ही बातें हो रही थी। और यह बात पक्की टटी में एक मेरी 7 साल की खिदमत में एक बंदे ने वहां पर कही थी। जब मैंने सवाल किया, मैंने कहा इस बात का जवाब दीजिए मुझे कि यीशु पानी में था, रूह कबूतर के मानद आया, आसमान से आवाज आई, ये कैसे मुमकिन? उन्होंने कहा जी खुद से ही बात हो रही थी, जैसे आदमी खुद से बात कर लेता, ये खुद ही में बात थी। और मेरा मानना भी ये है कि खुदावंद यीशु में खुदावंद ने खुद से बात की, और खुदा की 7 रूहें जो हैं वो खुदावंद यीशु में है। हालेलुया। समझ आ रही है? थोड़ा ऊपर से ना गुजरे, आज अंदर लेके जाना। लिखा है कलाम खुदा में, और उसके 7 सींग और 7 आंखें थीं। ये खुदा की 7 रूहें हैं जो तमाम रोया जमीन पर भेजी गई हैं। ये 7 रूहें हैं जो रोया जमीन पर भेजी गई हैं। खुदावंद यीशु पैदाइश की किताब में खुदा के साथ दिखाई देते हैं। खुदा कहता हो हम इंसान को बनाएं, हम मतलब कोई और भी है। फिर आदम ने जब गुनाह किया तो खुदावन ने कहा आदम अब हम में से नेक और बद की पहचान में हम में से एक की मानिंद हो गया, एक की मानिंद हो गया। और नेक और बद की पहचान रखने वाला मेरा और आपका खुदावंद यीशु था, जो जमीन पर आया, जिसे नेक और बद की पहचान थी, और वो जमीन पर आया और वो गुनहगारों के दरमियान रहा, लेकिन किसी गुनहगार का रंग उसे ना चढ़ सका। बात समझ रहे हैं? वे कड़ी के साथ कड़ी मिलती है। मुकाशफा में, पैदाइश मुकाशफा। और यीशु जब जमीन पर आए तो खुदावंद यीशु ने कहा बाप मुझ में है और मैं बाप में हूं, जो बाप मुझसे कहेगा वही होगा, क्योंकि मैं बाप में और बाप मुझ में है, बाप मुझ में और मैं बाप में हूं। खुदावंद यीशु ने यह बात अलानिया कही, और बाइबल में लिखा हुआ है कि वो ज़िबा किया हुआ बर्रा खड़ा था और उसके 7 सींग थे, 7 आंखें थी, और ये खुदा के 7 रूहें हैं जो तमाम रोया जमीन पर भेजी गई। खुदा कितनी रूहें रखता है जी? 7।
साढ़े को एक ऐसी ज़मीन तो उदम मचाया है, इको ये तो ज़मीन ते उदम मचा रखे है। और ये खुदा का दम है हम में हल्का सा, वो पूरा स्पिरिट जब आता है ना, होली गोस्ट आपके बदन में, तो जिसे आप छू लेते हो, वो अंधा हो या लंगड़ा हो, वो चलने लगता है, अंधा देखने लगता है, बीमार चंगा हो जाता है, मुर्दे जिंदा हो जाते हैं जब आप रूहुल कुदस के नजूल में होते हैं। तो जिसमें रूह की खुदावंद की 7 रूहें होंगी, वो कितना जोरावर और कितना पावरफुल होगा। यहां पर आगे मैंने आयतों को पढ़ा, उसने आकर तख्त पर बैठे हुए के दाहिने हाथ से उस किताब को ले लिया। जब उसने किताब ले ली तो वो जानदार और 24 बुजुर्ग उस बर्रा के सामने गिर पड़े, और हर एक के हाथ में बरबत और ओस से भरे हुए सोने के प्याले थे। ये मुकद्दसों की दुआएं हैं। और जब खुदावंद यीशु ने उस किताब को लिया, जिसे खोलने के लिए ना जमीन पर आदमी मिला, ना आसमान पर आदमी मिला, और कहता है यूहन्ना कहता है मैं रोने लगा, कहता मेरे आंसू गिरने लगे कि कोई भी रास्तबाज, कोई भी नेकोकार इस जमीन पर नहीं है जो इस किताब की मोहरों को खोले। लेकिन एक है जो मोहरों को तोड़ने की कुदरत रखता है, उसका नाम यीशु नासरी है। हालेलुया, हालेलुया। कहता पहली आयत में कहता है, और जो तख्त पर बैठा था, मैंने उसके दाहिने हाथ में एक किताब देखी जो अंदर से और बाहर से लिखी हुई थी, और उसे 7 मोहरें लगाकर बंद किया गया था। फिर मैंने एक जोरावर फरिश्ते को बुलंद आवाज से यह मुनादी करते हुए देखा कि कौन इस किताब को खोलने और इसकी मोहरें तोड़ने के लायक है। और कोई शख्स आसमान पर या जमीन पर या जमीन के नीचे उस किताब को खोलने या उस पर नजर करने के काबिल ना निकला। यहां पर बात खोलने की नहीं, यहां पर कोई इस लायक ही नहीं ताकि उस किताब को देख ही ले, नजर भर के उस किताब को देख ही ले। और ये अंदर बाहर से लिखी हुई थी। एक पेज, जब हम पेज को लेते हैं, उसके दोनों साइडों पे राइटिंग की जाती, लिखा जाए। जब उसको हम गोल घुमाकर ऐसे उसे रोल बना लेते हैं, और उसकी राइटिंग जो अंदर बाहर से में दिखाई देती। और ये तुम्हार जो था, ये जो कलाम का एक नवश्ता था, ये अंदर बाहर से लिखा हुआ था। और बाइबल के अंदर लिखा हुआ, यूहन्ना आरिफ कहता है कि कोई जमीन पर, आसमान पर या जमीन के नीचे कोई आदमी ना मिला, इस लायक कोई था ही नहीं। ना आसमान में मुकद्दसों की फौज है वहां पर, लेकिन वो भी इतने मुकद्दस, इतने पाक, इतने बेऐब ना थे, मानो कि इतनी कदूसियत उनमें ना थी कि वो इस किताब को खोल सकते। और लिखा है ना जमीन पर ना जमीन के नीचे कोई इस लायक ना निकला। और वो कहता मैं रोने लगा, कहता और मैं इस बात पर जार जार रोने लगा कि कोई उस किताब को खोलने या उस पर नजर करने के लायक ना निकला। तब उन बुजुर्गों में से एक ने मुझे से कहा कि मत रो, देख यहूदा के कबीले का वो बब्बर जो दाऊद की असल है, उस किताब और उसकी 7 मोहरों को खोलने के लिए गालिब आया है, उसका नाम यीशु नासरी है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु वो खुदा है जो मोहरों को तोड़ देता है, जो मोहरों को खोल देता है। मोहरें जमीनी हो या आसमानी, पाताल में हो या आलमे अरवा में, हवाओं फिजाओं में हो या आलमे अरवा में, खुदा मोहरों को तोड़ने की कुदरत रखता है। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਂ ਦਾ ਤਾਲਾ ਭਾਵੇਂ कराची के समंदर च सुटिया जाएगा तो खोलिया जाएगा। समंदर की गहराइयों को भी खुदावंद यीशु जानता है। ऐसे लोगों के पीछे लग कर ना कहें भी ਤੁਹਾਡਾ ताला सुटिया होया कराची के समंदर च तुसीं शिफा नहीं पा सकते। ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ इल्म होया ਤੁਹਾਡਾ ताला करके किसी ने कराची के समंदर सुट दिता। बड़ी गहरी अमीक नज़र है भाई, समंदर के नीचे भी देखता है, लेकिन शिफा नहीं दे रहा।
शिफा नहीं दे रहा। शिफा एक ही हाथ में है, शिफा एक ही नाम पर है, शिफा एक ही हस्ती में है, जो ज़िबा किया गया, जो मारा गया, जो कोटा गया, जो दफन किया गया, जो तीसरे रोज मुर्दों में से जी उठा, जो आज के रोज मुझ में और आपके दरमियान मौजूद है, उसका नाम यीशु नासरी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कहता है मैंने उसको भी देख लिया, और वो आया और उसने तख्त पर बैठे हुए के हाथ से उस तुम्हार को लिया, उस किताब को लिया, और 24 बुजुर्ग उसके सामने झुक गए, और मुकद्दसों की जो लश्करगाह थी वो भी झुक गई, सिजदे किए उस ज़िबा किए हुए बर्रे को, और उसके हजूर में घुटनों के बल हो गए। खुदावंद यीशु वो खुदा है जिसके सामने आसमानों के लोग हों या जमीन के लोग हों या वो जो जमीन के नीचे हैं, कलामे खुदा में लिखा हर एक घुटना उसके सामने झुक जाएगा, क्योंकि वो मालिक कायनात और यहोवा एडोनाई खुदा है। हालेलुया, हालेलुया। खुदावंदिया किनिया रूहाने, खुदावंदिया किनिया रूहाने जी, सब किस में है? सब किस में है? सब यीशु में है। मुकाशवा की किताब की आयत को याद कर लो, मुकाशवा 5 बाब और उसकी 6 आयत, 7 आयत, इन दोनों आयतों को जुबानी याद कर लो। लेकिन बर्रा खड़ा देखा, उसके 7 सींग और 7 आंखें थीं। ये खुदा के 7 रूहें जो तमाम रोया जमीन पर भेजी गई थी, और ये खुदावंद यीशु में थी। ऐ मेरे खुदा, ऐ मेरे खुदा, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? ये कलमा आपने सुना होगा। खुदावंद यीशु ने कहा, ऐ मेरे खुदा, ऐ मेरे खुदा, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? रूह खुदावंद यीशु से अलग हो गया था जब यीशु की आजमाइश चल रही थी। 7 स्पिरिट अलग हो गई थी यीशु से। 7 रूहें, खुदा की 7 रूहें यीशु से जुदा हो गई थी, और यीशु एक आम स्पिरिट के साथ सलीब पर था। और लोग अब ये कहें ना, यीशु में 7 रूहानी कुव्वतें थी, इसलिए यीशु ने दुख बर्दाश्त किया। ये कलमा बताता है कि यीशु आम स्पिरिट में वो दुख बर्दाश्त कर रहा था, और वो आम स्पिरिट में भी था, लेकिन उस पर कोई गुनाह, कोई बदी, कोई दर्द, कोई दुख उस पर गालिब ना आया। वो मारा गया, और एंड पे उसने कहा, बाप मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं। बाप मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं। यीशु ने जब अपनी रूह खुदावंद के हाथों में सौंपी, और जब खुदावंद यीशु तीसरे रोज मुर्दों में से जी उठा, तो वही फरिश्ते जो खुदावंद यीशु को दूर से कहीं देख रहे थे, करीब आकर कहने लगे, तुम जिंदा को मुर्दों में क्यों ढूंढती हो? देखो वो अपने कहे के मुताबिक जी उठा है। और यीशु जब गतसमनी बाग में दुआ कर रहे थे, और फौज, कदूसियों की फौज, लाखों करोड़ों में फरिश्ते खुदावंद यीशु के पास खड़े हुए थे। खुदावंद यीशु वो खुदा है जो आसमान पर हो या जमीन पर, लश्करों के लश्कर खुदावंद यीशु के चौगिर्द खड़े रहते हैं। हालेलुया। रेजरेक्शन डे का समझा रहा है, समझा रही सरमन की, समझा रही। खुदावंद आप सबों को बड़ी बरकत बख्शिए। कहते हैं ये मुकद्दसों की दुआएं हैं, साड़ियाँ दुआवां भी खुदावंद यीशु दे कोल पहुँचाइयाँ जांदियां, और वहाँ पर खुदा हमारी दुआओं का जवाब देता है। आपकी प्रेयर हर हाल में खुदावंद तक पहुंचनी। अब यीशु खुद आपकी प्रेयर के लिए आते हैं, लेकिन जहां 2 या 3 मेरे नाम से जमा, मैं वहां पर मौजूद हूं। और यीशु अगर खुद मौजूद हैं तो आपकी ब्लाइंडनेस जानी चाहिए। आप ईमान से उसको देखो, ईमान से उसको पुकारो। वो 7 रूहें रखता है, और वो मौजूद है। उसके खोले को कोई बंद नहीं करता, और उसके बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता। खुदावंद अपने कलाम की वसमुझी
اور آپ سبوں کو بڑی برکت بخشے. آمین آمین. تھینک یو سو مچ.